हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था फॉर स्टेटमेंट। तो उससे रिलेटेड हमने उसके सिंटैक्स देखे, उसके प्रोग्राम देखे कि फॉर स्टेटमेंट कैसे काम करता है। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग लूप यूजिंग वाइल स्टेटमेंट। तो हम वाइल स्टेटमेंट से भी क्या कर सकते हैं, लूप क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट ए लूप यूजिंग वाइल स्टेटमेंट, राइट। तो वी आर क्रिएटिंग ए लूप यूजिंग वाइल स्टेटमेंट। तो इसमें इसका सिंटैक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स है while, then ब्रैकेट में you can have, and you should have this condition, then the block and statements. Statement 1, statement 2 and as many as statement, जितने आपको चाहिए उतने स्टेटमेंट्स आप इसमें रख सकते हैं, राइट। एंड द ब्लॉक। Is that clear? So this is the syntax of the while statement. Test condition. Important point to note. What you have to note down for creating a loop, the test condition must be true, right? This is the requirement. If you want to run a loop using while, that means the test condition, this condition should be true. Then your loop will execute. But for terminating a loop, the test condition must become false, right? The condition must become false in that case. ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, तभी आपका लूप क्या होगा, खत्म होगा। इसके अलावा अगर कंडीशन फॉल्स नहीं है फिर भी आप लूप खत्म करना चाहते हैं, तो उस केस में there is second alternate. That means you can use break statement to terminate a loop immaturely. Immature termination के लिए आप break statement का भी प्रयोग कर सकते हैं। Is that clear? Right. Now suppose we want to write a program to print a name, suppose 10 times. The same problem which we have done with for statement, जो for से किया हमने वही हम एक बार while से करके भी देख सकते हैं। बट इसके अलावा भी we have a problem, like suppose जिसका हम while से ही करना चाहेंगे, write a program to read a number and print the sum of its digits.
You write a program to read a number and print the sum. जैसे for example, जो नंबर रीड किया आपने, सपोज नंबर यू हैव रेड, दैट इज ये रीड किया 3 4 5 6 से, एंड आउटपुट क्या आना चाहिए, व्हाट आउटपुट वी वांट द आउटपुट शुड बी द एडिशन ऑफ द डिजिट, दैट 3 + 4 7 7 + 5 you will have 12 12 + 6 you will have 19. 19 should be the output if this is the input. ये अगर ये इनपुट है, अगर ये इनपुट किया गया है, अगर ये इनपुट किया है तो आउटपुट हमें ये चाहिए, रिक्वायर दिस आउटपुट. इज दैट क्लियर? राइट. नाउ वी विल टाइप दिस प्रोग्राम इन code block and we will execute it and see the output how the. now अब हम प्रोग्राम बनाएंगे while स्टेटमेंट को यूज करके. तो पहला प्रोग्राम हमारा था कि हम एक नाम को 10 बार प्रिंट करें. जो हमने फॉर से किया था वही काम हम while से करके अभी देखते हैं. तो फाइल न्यू फाइल, राइट. तो हैश include stdio.h stdio.h, then int main, then declare variables, like suppose you are having I, initial value 1, then we can have while, and then test condition. The test condition is I less than equal to 10, right. Then we will have a printf statement. We will print a name, Aman Singh, and at the same time we have to increase this I. If you will not increase this I, we cannot terminate this loop. कोई लूप टर्मिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि I 1 ही रहेगा और ये कंडीशन फॉर एवर क्या रहेगी, ट्रू रहेगी. तो यू हैव टू इंक्रीज दिस I by 1 increment. Now before compiling we can save this program using while1.c. right. सेव कर लिया आपने प्रोग्राम को इस नाम से, right. already exist. You want to replace? Yes, I want to replace. We have same, the program same name already there. तो हमें उसका कोई फला मतलब नहीं. कंपाइल कर लिया हमने प्रोग्राम को. Then when the program has been compiled, now the next step is to run your program. So you can see, we can zoom it. So 10 times we are having this something 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right. We can close it. You can zoom back. You can zoom this also so that you can see the program clearly visible to you. This is the program, right. This is the program, right. If suppose this condition, you have written the condition in this way, अगर आपने कंडीशन ऐसा किया I greater than equal to 10, क्या होगा इस केस में? What will happen? लूप चलेगा या नहीं चलेगा? तो इस केस में लूप नहीं चलेगा क्योंकि हमने कहा लूप चलाने के लिए टेस्ट कंडीशन का इनिशियली क्या होना चाहिए, ट्रू होना जरूरी है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स है, और आपका लूप इस केस में नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है,
पहले बार में फॉल्स हो रही है. जस्ट कंपाइल योर प्रोग्राम. वी हैव टू सेव इट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेव हमने कंपाइल किया, राइट, एंड ऑलरेडी इस प्रोग्राम. तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स रहेगी बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई इज 1 एंड आई ग्रेटर इक्वल टू 10. कंडीशन ये बना रखी है आपने. तो हमने कहा था लूप चलाने के लिए कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, पहली बार में कंडीशन क्या मिल रही है, फॉल्स बन रही है. तो ये लूप नहीं चलेगा और अमन सिंह प्रिंट नहीं होगा. जस्ट यू कैन check this, you can compile this program, you can run this program. अगर आप रन करके देखते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है कि कोई आउटपुट नहीं आ रहा है. आप जूम करके इस आउटपुट स्क्रीन को देखें, कोई भी चीज़ प्रिंट यहाँ पे नहीं हो रही है, राइट. प्रोग्राम आपका ये है. तो आपकी यहाँ कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये लूप नहीं चला और आउटपुट में आपने देखा कि अमन सिंह जो है नाम प्रिंट नहीं हुआ. तो ये ज़रूरी है कि लूप चलाने के लिए कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है. डिस्प्ले द कंडीशन इज फॉल्स, इसलिए ये नहीं चलेगा. ये आपको ध्यान में रखना है लूप चलाएंगे अब आप, राइट. दूसरा प्रोग्राम था हमारा, क्या था भाई, प्रोग्राम था टू फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट. तो क्या करना था हमें, वी हैव टू रीड ए नंबर एंड रीड करने के बाद, जैसे हम प्रोग्राम को आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो वी हैव 3 वेरिएबल. नम वो वेरिएबल जिसमें नंबर आप पूछेंगे, सम जिसमें समेशन करेंगे डिजिट्स का, और एक्स जिसमें आप रिमाइंडर लेंगे नंबर्स का. तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले आपने नंबर पूछा. स्कैनफ किसके लिए काम आता है, इनपुट के लिए. ये क्या है, एम्परसेंड है, ये एड्रेस ऑपरेटर है. परसेंट ये डी क्यों लिया, क्योंकि नम क्या है, इंटीजर है. अगर ये नम फ्लोट होता तो परसेंट एफ आता, राइट. फिलहाल इंटीजर है, हमें ध्यान रखना है. अब लूप चलाया, कंडीशन क्या है हमारी, नम ग्रेटर देन 0. अब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स डिपेंड करेगा नंबर क्या आप डाल रहे हैं. अगर नंबर आपने 152 डाला तो कंडीशन क्या ट्रू है, लूप चलेगा, राइट. तो डिपेंड करेगा नंबर आप क्या डाल रहे हैं. फिलहाल जो भी आपने नंबर डाला, फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर डाला 456, तो ये परसेंटेज जो है ऑपरेटर है, ये क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर है. ये ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है, शेषफल निकालता है. जैसे आप 456 को डिवाइड करें, 10 से भाग दें, तो शेषफल क्या आएगा, 6 आएगा, और भागफल क्या आएगा, 45, द कोशेंट, राइट. तो यहाँ पे अगर 456 नंबर है, अगर यू आर डिवाइडिंग इट बाय 10 यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर, तो इट विल गिव 6 इन एक्स. तो आपका राइट मोस्ट जो डिजिट है नंबर का वो आ गया, उसको सम में आपने ऐड कर दिया. अब आपका नंबर जो है नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, कोई 6 निकल गया, नंबर शुड बी 45. तो आपने यहाँ पे क्या किया, रिमाइंडर नहीं डिवाइड किया, एंड दिस इज कॉल्ड इंटीजर डिवीजन. तो 456.6 आंसर आएगा, 0.6 को छोड़ देगा, तो क्या रहा, 45 रहा. वापिस लूप में गया, 45 ग्रेटर 0 है, फिर क्या निकालेगा, 5 निकालेगा, 5 ऐड करेगा, 45/10, तो आप क्या निकलेगा, 4 रह जाएगा, 5 निकल जाएगा, फिर 4 मॉडुलस 10, 4 आएगा, सम 4 आएगा, 4 डिवाइड बाय 10 0 होगा, लूप खत्म हो जाएगा. लेकिन आपका 654 ऐड हो चुका किसमें, सम में, और फाइनली आपने सम को क्या किया, प्रिंट किया, राइट. इज दैट क्लियर, राइट. अब मैं इसको आपको रन करके दिखाते हैं. पहले आपको कंपाइल कर लें प्रोग्राम को, कंपाइल योर प्रोग्राम, देन यू कैन रन योर प्रोग्राम. तो एंटर नंबर, आपने 456 इज द नंबर यू गॉट. क्या मिला आपके पास भाई, आपने क्या डाला यहाँ पे, 456. दिस इज द इनपुट. आउटपुट क्या मिला आपको, 50. इज दैट क्लियर, फाइन.
तो ये आपने दूसरा प्रोग्राम देखा। जो एक्चुअल वाइल का यूज़ है वो यही है कि हम पहले से डिसाइड नहीं करें लूप कितने बार चलेगा, डिपेंड करेगा नंबर पे कि नंबर कितना डिजिट का। अगर नंबर 5 डिजिट का है तो 5 बार, 4 का है तो 4 बार, 2 का है तो 2 बार, एंड सो ऑन। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम देखी वाइल के द्वारा कैसे लूप बना सकते हैं, कैसे वाइल काम करता है, और क्या सावधानियां हमें चाहिए वाइल को इस्तेमाल करने के लिए। और प्रॉब्लम्स अगर हम आप की डिमांड रहेगी कि कुछ और प्रॉब्लम्स वाइल से करें तो वो हम करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा डू वाइल पे। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।